Children, today we will again continue the electrochemistry. Page number 70. NCERT book, page number 70. Today we will discuss the relation between E cell and equilibrium constant. There is a relation between the standard electrode potential and equilibrium constant. First of all, yes, so E cell, that is the EMF of the cell, is equal to E naught cell minus 0.0592 by n log Zn plus concentration and copper double plus concentration. You might have studied. This is the expression from the Nernst equation applied to the galvanic cell. Now, for this cell, this is the expression for galvanic cell. Zn Cu double plus, this gives the Zn double plus Cu. Now you can apply the value of the equilibrium constant Kc का वैल्यू यदि अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, Zn डबल प्लस का बाई डिवाइडेड बाई Cu डबल प्लस. यहाँ का Cu और यहाँ का Zn नहीं लेते हैं क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिविटी या कंसंट्रेशन कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर. इसीलिए यहाँ पर Zn डबल प्लस डिवाइडेड बाई Cu डबल प्लस लेते हैं. Kc के लिए एक्सप्रेशन होता है. दूसरा चीज है कि E cell, now E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 by n log, for log Zn double plus by copper double plus, Zn double plus by copper double plus, we may put log Kc. Kc is equal to what? Kc is equal to Zn double plus concentration by copper double plus. So in place of log Zn 2 plus by copper 2 plus, it is equal to E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 by n log Kc. So this is the expression for E cell. Now at equilibrium what will happen when no current will flow? Equilibrium में क्या होगा, जब कोई करंट नहीं फ्लो करता है तो E cell is equal to 0 हो जाता है. E cell is equal to 0, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग Kc. अब इसको हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 बाई एन लॉग Kc. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द standard electrode potential and equilibrium constant. Relation between standard electrode potential and equilibrium constant. Now there is other relationship between the Gibbs free energy, relationship between the standard free energy or the Gibbs free energy and the equilibrium. So del G naught is equal to what? Minus NF E naught cell. Del G is not equal to what? Minus NF E naught cell, where n is equal to what? Number of electrons involved. F is equal to what? Faraday constant. E naught cell, difference in the standard electrode potential of cathode and anode, and del G naught is equal to the Gibbs free energy, standard Gibbs free energy. Now turn over the page. You have del G naught is equal to what? Del G naught is equal to standard free energy. I have discussed already. N is equal to number of electrons involved. Please write down. F is equal to Faraday constant. This is equal to 96500 coulomb. E naught cell is the difference between the standard electrode potential of right minus standard electrode potential of left. That is cathode minus anode. Del G naught is equal to, again this expression is also, this expression is used, but sometimes students apply this equation also. That is, you might have read in 11 that
डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। ये 11 के फार्मूला से आता है, इस पर भी बच्चे बनाते हैं। यहाँ पर भी डेल जी क्या है, डेल जी नॉट क्या है, वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसमें रिलेशनशिप आता है। तो फॉर्मूला ये भी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये दोनों ही इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं जो पेज नंबर 71 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 71 पर न्यूमेरिकल और वर्कड आउट क्वेश्चन। मैंने कहा था उस दिन के वर्कड आउट क्वेश्चन बनाने से बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बनाइए। जैसे मान लीजिए इसको हमको ये लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द सेल। रिप्रेजेंट द सेल का मतलब क्या हुआ, सेल को आपको रिप्रेजेंट करना है। इक्वेशन दिया है, आपको सेल बनाना है। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो व्हाट इज द रिएक्शन, Mg सॉलिड 2Ag प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। Mg डबल प्लस, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और 2Ag सॉलिड। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है और ई सेल निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द ई सेल इफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट। नाउ अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बताया था कि एनोड और कैथोड। तो कैथोड लेफ्ट साइड में लिखना है, एनोड राइट साइड में लिखना है, बीच में सॉल्ट ब्रिज देना है। तो कैसे लिखेंगे, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस के साथ इसका कंसंट्रेशन देना पड़ेगा 0.130 M, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.001 M एंड Ag। तो ये हम लोग ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखे इसके लिए। उसके बाद ई सेल कैसे निकलता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा, 2 लॉग, ठीक है, और Mg डबल प्लस बाई Ag। Ag में स्क्वायर देते हैं, Ag प्लस में स्क्वायर देते हैं। इसका कारण है कि एक चीज़ हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो कि Mg क्या करता है, Mg इलेक्ट्रॉन लॉस करता है प्लस 2E माइनस। सिल्वर क्या करता है, सिल्वर गेन करता है, ये बना दिया Ag। अब इसको जोड़ दीजिए। मान लो कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन हो गया Mg प्लस 2Ag प्लस एंड Mg डबल प्लस प्लस 2Ag, ये हो गया। तो यदि हम ई सेल का वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलता है, ई नॉट सेल, और माइनस लेते हैं तो इधर वाला हमको लेना पड़ेगा, प्लस लेते हैं तो इधर वाला। तो मान लो कि हम एक बार उधर माइनस लेके बताएं, एक बार प्लस लेके भी बता देते हैं। प्लस 0.0592 बाई कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लॉग। अब प्लस देते हैं तो इधर वाला लिखना पड़ेगा। Ag में क्या कोफिशिएंट देना पड़ेगा, क्या कोफिशिएंट है 2, तो Ag प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई Mg डबल प्लस। और यदि कोई बच्चा माइनस लेके लिखता है तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई 2 लॉग, Mg को ऊपर करिए, Mg डबल प्लस डिवाइडेड बाई Ag प्लस स्क्वायर। तो ये कोफिशिएंट को पावर देना जरूरी है, ये इसको ठीक से समझ लीजिए कि कितना ई का वैल्यू कितना निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 निकला। कैसे कैसे 2 आया देखिए। उसके बाद कैसे हमें क्यों स्क्वायर किए कि जिसका कोफिशिएंट 2 है इसलिए हमको स्क्वायर करना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग इस सेल का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ में ये चीज़ दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को हम बनाए थे कि मान लो ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 3.17 माइनस
0.0592/2 log, और mg डबल प्लस का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 0.130 क्वेश्चन में दिया है 0.001 स्क्वायर। तो ये यदि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.96 वोल्ट। दूसरा चीज़ है 72 पेज का एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का हमको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। Cu सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस Cu डबल प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। मान लो इसको में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, Kc निकालना है, और ये 72 पेज का क्वेश्चन है। सी हियर, सो इस E नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट सेल ऑलरेडी गिवन 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू एक रिलेशन हम पढ़ाए हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592/n log Kc। E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592/n log Kc। E नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.46 वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 0.0592 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2 log Kc। तो log Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ये मान लो सॉल्व करके 15.6 आता है, तो Kc इज इक्वल टू लिख देना है एंटी लॉग ऑफ 15.6। मान लो निकालते हो तो भी ठीक है, नहीं निकालते हैं तो 15.6 3.92 10⁵ ये आपका आंसर आता है। तो ये सारा न्यूमेरिकल आपको बनाना है, ये पेज नंबर दिया हुआ है 72, और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ये सब आप लोगों को करना है। और एक चीज़ और है कि बच्चों जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को मान लो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, तो बच्चों को चाहिए कि जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ाई हो गया और जो क्वेश्चन आपको किताब में विथ पेज नंबर हम दिए हुए हैं उसका आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जाइएगा कि चलो ये तो बनाया हुआ है इससे हम कर लेंगे। ऐसा देखा गया है कि बच्चे बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं, और ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पता चलता है कि कोई लॉग के चलते ये नहीं बनाया, कोई उसका अच्छा से क्वेश्चन नहीं निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सका। तो इस पर हम बहुत सारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो बच्चों को चाहिए कि ये सारा चीज़ बैठ के बनाएं। ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे क्वेश्चन जो बच्चे दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल उसका यूटिलाइज कम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको जब तक नहीं बनाएंगे, आप टच में नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट का टच में नहीं रहेंगे, आप थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, यही मेरा कहना है। थैंक यू।